हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ JL मेहता सीरीज़। आज हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रहे हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द सल्तनत वॉज नॉट सो वेल डेवलप्ड एज दैट ऑफ द imperial Mughals. Akbar was in fact the founder of the Subas or the Indian provinces as we understand them today. If he who created a uniform system of provincial government throughout the empire. The territories of the Sultanate could be broadly divided into two parts: Khalsa, or the land under the direct administrative control of the central government, and the Jagirs. The latter comprised the land under the autonomous control of tributary Hindu chieftains and the iktas or the rent-free estates held by Muslim nobility in lieu of state service. The Khalsa could be further split up into two categories from point of view of administration control. The first category comprised the northwestern region inclusive of provinces of Lahore, Multan, Doab and Gangetic Valley up to the borders of Bihar and Bengal. The provincial governors of this region, usually called walis or muktas, were under the firm control of imperial government under normal circumstances. The second part of the Khalsa included distant provinces of Gujarat, Malwa, Bihar, Bengal, and those of Deccan under the Tughlaqs. Their governors enjoyed sufficient autonomy in their internal administration, maintained huge armies, and were usually very influential men. Some of them inherited their governorships and received the titles of Naib Sultan, that is, the deputies of the Sultan, in their own respective regions. The hold of the imperial government over them was not always very strong. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली सल्तनत में इतनी कुछ खास डेवलप्ड नहीं थी। जो आज हम लोग सूबा या इंडियन प्रोविंसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में आज जो हम लोग जान पाते हैं वो अकबर ने डेवलप किया था। उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। पूरी जो टेरिटरी होती थी सल्तनत पीरियड की वो दो तरह के लैंड में डिवाइडेड थी, खालसा लैंड और जागीर लैंड। खालसा वो लैंड हुआ करता था जो डायरेक्ट कंट्रोल में था सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जागीर जो है वो हिंदू चीफ्टन्स का या फिर मुस्लिम नोबिलिटी का जो है ऑटोनॉमस कंट्रोल वाला लैंड हुआ करता था। तो खालसा जो है उसको फर्दर स्प्लिट किया गया है दो कैटेगरी में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली कैटेगरी जो है वो इंक्लूड करती थी लाहौर, मुल्तान, दोआब, गैंगेटिक वैली और अपर बॉर्डर्स ऑफ गैंगेटिक वैली अप टू बिहार एंड बंगाल। वहाँ तक पहला पार्ट ऑफ खालसा लैंड होता था, और दूसरा पार्ट खालसा लैंड का जो था वो गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल इन सारे एरियाज़ को कंट्रोल करता था तुगलक के समय में देख लें तो, और डेक्कन भी इंक्लूडेड था ऑफ कोर्स। प्रोविंशियल गवर्नर्स जो होते थे इन रीजन के उनको वालिस कहा जाता था या मुख्तास कहा जाता था, और वो फर्म कंट्रोल रखते थे इम्पीरियल, और उन पर फर्म कंट्रोल होता था इम्पीरियल गवर्नमेंट का नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे। गवर्नर्स जो होते थे खालसा लैंड के उनको भी ऑटोनॉमी दी जाती थी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। वो ह्यूज आर्मीज़ मेंटेन किया करते थे, यूजुअली बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मैन हुआ करते थे, तभी उनको ये लैंड मिला करता था। और इसमें से कुछ जो है उनको गवर्नरशिप्स भी मिला करता था, और नायब सुल्तान का टाइटल भी दिया जाता था, मतलब सुल्तान के डेप्यूटी अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन में। The hold of imperial government over them was not always very strong. हमेशा जो है imperial government का hold strong नहीं होता था, but normal circumstances में firm hold होता था। Provincial government was an exact replica of central government. The wali or governor acted as deputy of the sultan in his province and was directly responsible to the sultan. Being the chief executive of the province, he was responsible for the defense of his charge and maintenance of law and order therein. He was commander of provincial army. He held a small court, but ordinarily was not authorized to use the canopy or the royal insignia. The other provincial dignitaries were the Wazir or Wakil, Ariz, Sadar and Qazi. They were appointed sometime by the central government but very often by the governor with the approval of the Sultan.
Their function corresponded to their counterparts in Delhi. None of them claimed equality of status with the governor, rather, they had to act in subordination to the latter. In some provinces, Sultan appointed an imperial officer called Sahib-e-Diwan on the recommendation of the Prime Minister. He controlled the provincial revenues and exercised a sort of check on the power and activities of the governor. तो provincial government भी वैसे ही चलता था जैसे central government चलती थी. वली या फिर गवर्नर जो है वो सुल्तान का डेप्यूटी होता था प्रोविंसेस में, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था प्रोविंस का, इसलिए वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था. वो प्रोविंशियल आर्मी का कमांडर भी हुआ करता था और वो एक स्मॉल कोर्ट भी चलाया करता था, जो कि एक्चुअली सेंट्रल कोर्ट के सामने कुछ नहीं था, बट एक छोटा सा कोर्ट इनका भी प्रोविंशियल गवर्नर्स का भी हुआ करता था. और इस कोर्ट में जो है वजीर या वकील होते थे, अरिस, सदर और काजी होते थे. ये वही काम करते थे जो सेंट्रल में वकील, अरिस और सदर, काजी ये सब करा करते थे, वही प्रोविंस में भी वही काम होता था, सेम काम. और ये कभी भी गवर्नर से खुद को सुप्रीम नहीं दिखाते थे ये डिग्नेटरीज. कभी भी क्या होता था कि कुछ कुछ प्रोविंसेस में कभी कभी सुल्तान जो है वो साहिब ए दीवान को भी रखा करते थे. ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ऐसा सुल्तान किया करते थे. एक्चुअली अगर प्रोविंशियल गवर्नर बहुत पावरफुल होता था तो कभी कभी डर होता था कि वो कहीं पावर यूजर्प ना कर ले या कुछ अगेंस्ट सुल्तान ना प्लान करे. तो ये जो है साहिब ए दीवान जो है इट एक्टेड एज अ चेक ऑन द पावर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नर. नाउ लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ ended. Now local government. Local administrative unit of provincial government of the Sultanate was very vague and undefined. The district of Tehsil level administration as took its form during the reign of Shershah Suri was a far cry, albeit we have the evidence to show that some of the provinces were divided into shiks or districts which were governed by शिकदार. तो क्या होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में हमको कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है. तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शेरशाह सूरी के समय से शुरू होता है, तो वो अभी बहुत दूर की बात है. लेकिन हमें कुछ प्रोविंसेस का पता चलता है कि वो शिक में डिवाइडेड थे और शिक को रूल किया करते थे शिकदार. हर शिक जो है उसमें कुछ फरगाना हुआ करते थे और परगाना जो है उसका नंबर फिक्स नहीं होता था. Whenever these divisions existed, the Sikdar acted as chief executive officer of the district who maintained law and order within his territorial jurisdiction with the help of small locally recruited militia or army. तो जहाँ पर शिकदार हुआ करते थे तो शिकदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट के चीफ हुआ करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही अपने काम करते थे. एक रिक्वायर्ड लोकल मिलिशिया मतलब लोकल मिलिटेंट्स का एक आर्मी भी इनका होता था. He suppressed the refractory khuts, mukaddams and zamindars and held the amil in collection of revenue and other taxes. तो अगर खुद मुकद्दम या ज़मींदार जो है वो जो रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे तो वो अगर नहीं देते थे टाइम पर तो वो शिकदार जो है वो इनको सप्रेस करते थे और लैंड रिवेन्यू पर अपना जो है खुद का इम्पोर्टेंस या प्रोमिनेंस मेंटेन करते थे. परगाना और कस्बा वॉज एन एग्रीगेट ऑफ विलेज नंबरिंग अबाउट 100 अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता. तो इब्न बतूता के हिसाब से परगाना क्या था, ये कलेक्शन ऑफ विलेज था, या कस्बा तो ये क्या था, ये कलेक्शन ऑफ विलेज था. लगभग 100 विलेजेस का एक 100 विलेजेस मिला करके एक कस्बा बनता था. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ परगाना आफ्टर शिकदार वेर एन अमिल, मुशरीफ, खाजनदार एंड कजी. तो काजी, खाजिनदार, अमीर और मुशरिफ जो है ये शिकदार के बाद जो है ये जो है परगाना में रूल किया करते थे. अमीर का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, मुशरीफ जो है वो अकाउंट्स मेंटेन करते थे, खाजिनदार जो है वो सेफगार्ड करते थे, रॉयल ट्रेजरी को बचाते थे, और काजी जो है वो सिविल सूट्स देखा करते थे. जबकि सिकदार जो है वो क्रिमिनल जस्टिस को सिकदार जो है वो देखा करते थे. पुलिस चीफ ऑफ द टाउन कॉल्ड कोतवाल एक्टेड इन सबॉर्डिनेशन टू शिकदार. तो शिकदार के अंदर जो है वो कोतवाल भी हुआ करता था जो पुलिस चीफ था टाउन का. द मिलिट्री ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द फोर्ट अलॉन्ग विद देयर एडजॉइनिंग टेरिटरीज वेयर कॉल्ड फौजदार. फौजदार कौन हुआ करते थे, जो कि
कोर्ट को, जो कि फोर्ट को बचाया करते थे और एडजॉइनिंग टेरिटरीज को बचाते थे डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको फौजदार कहा जाता था। एट द लोएस्ट लैडर स्टूड द विलेज विच वर गवर्नड बाय लोकल पंचायत। और सबसे निचला हिस्सा क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का, सबसे बेसिक यूनिट क्या था, विलेज था। और विलेज को लोकल पंचायत रूल किया करती थी, जो मोस्टली सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ डिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी। और ये बैकबोन थी इंडियन पॉलिटी का अर्ली मेडाइवल टाइम्स में। इसके बाद हम लोग जो है फिस्कल पॉलिसी करेंगे। फिस्कल पॉलिसी ऑफ द सल्तनत वॉज बेस्ड ऑन द theory of taxation as propounded by Hanafi school of thoughts among the Muslim jurists. It prescribed the levy of 4 kinds of taxes: zakat, kharaj, khams and jizya. The zakat was religious tax paid by Muslims as an act of pity for the benefit of welfare of co-religionists. It was charged as a rate of 2.5% of the actual income or property. Kharaj was the land revenue, which varied from 10% to 50% of the agricultural produce and was payable in cash or kind. Tributary: Hindu chiefs also paid tribute or kharaj in lump sum. The khams constituted the state share of the booty acquired by the soldier in course of war. Islamic law required the soldiers to surrender 1/5 of the spoils to the sovereign, whereas powerful monarchs demanded much more. So much so that Alauddin Khalji wanted his soldiers to hand over 4/5 of it to the state exchequer. As stated elsewhere in the study, the jizya was a poll tax charged from the Hindus in their capacity as jimmis. They were denied the right of full-fledged citizenship of the state. Jizya was collected from the able-bodied grown-up males. The Hindu population was divided into 3 grades on the basis of their economic standing. The richest among them paid 48 dirhams, the second grade 28 dirham, and the third 12 dirham per annum. The nature of the tax, the mode of its collection, and implication on Hindu-Muslim relation have long been the subject of historical analysis and detailed treatment by modern scholars. Hence, it is not deemed necessary to say much about these aspects in this study. तो फिस्कल पॉलिसी क्या थी? 4 तरह के टैक्स थे जो हनाफी स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो मुस्लिम जूरिस्ट को प्रपाउंड करते थे कि 4 तरह के टैक्स आप लगा सकते हैं। ये 4 तरह के टैक्स थे: जक़ात, खरच, खम्स और जजिया। जक़ात जो है ये एक रिलीजियस टैक्स था जो बस मुस्लिम्स को ही पे करना था। ये 2.5% टोटल इनकम का हुआ करता था। ये जो है ये को रिलीजियनिस्ट, मतलब जो वैसे मुस्लिम्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिक लाइवलीहुड, तो उनकी भलाई के लिए ये काइंड ऑफ एक चैरिटी काइंड ऑफ टैक्स था। खरच जो है ये लैंड रेवेन्यू होता था और ये 10 से 50% वेरी करता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, और ये कैश और काइंड में लिया जाता था। जो हिंदू चीफ्टन्स भी हुआ करते थे वो भी खरच जो है वो पे करते थे लमसम में। खम्स या खम्स जो है ये क्या होता था? ये वॉर बूटी, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। ये वॉर बूटी हुआ करता था जो कहीं से आपने लूटा, तो नॉन इस्लामिक एरिया में जब आपने वॉर किया तो वहाँ से जो आप लूट कर लाए तो उसको जो है डिवाइड किया जाता था। तो खम्स जो है वो दैट वाज द टैक्स। इस्लामिक लॉ के हिसाब से सोल्जर को 80% मिलना चाहिए था और सुल्तान को जो है वो 20% मिलना चाहिए था, या सोल्जर को जो है 4/5 मिलना चाहिए और सुल्तान को जो है वो 1/5 मिलना चाहिए। पर कभी कोई पावरफुल सुल्तान आ गया तो वो इस लॉ को नहीं मानता था। वो जो है जैसे अलाउद्दीन खलजी ने जो है अपने लोगों से 4/5 जो है कहा कि आप स्टेट एक्सचेकर को दे दो, मतलब 80% जो है अलाउद्दीन खलजी ही रखते थे और बस 20% सोल्जर्स को दिया करते थे। जजिया जो है वो एक पोल टैक्स था जो हिंदूज़ पर लगता था, क्योंकि आपको जो सिटीजनशिप के मतलब आपको एज अ सिटीज़न जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए, जैसे जो भी स्टेट कर रहा है, क्योंकि हिंदूज़ को वो सिटीजन नहीं मान रहे थे, तो जो भी स्टेट कर रहा है अपने लोगों के भलाई के लिए, जैसे रोड डेवलप करवाना, ये वो सारी चीज़ें, और या फिर कनाल ही बिल्ड करना, तो उसके लिए क्या होता था? जजिया लिया जाता था नॉन मुस्लिम्स से। तो हिंदूज़ पर जजिया लगता था और फिर जजिया देने के बाद हिंदूज़ जो है जिम्मीज़ बन जाते थे और इनके भी प्रोटेक्शन का जो है जिम्मेदारी जो है वो सुल्तान पर चली जाती थी कि फ़ॉरेन लोगों से प्रोटेक्ट इन जिम्मीज़ को भी सुल्तान करते थे। आफ्टर द पेमेंट ऑफ जजिया हिंदूज़ जिम्मीज़ बन जाते थे और फिर उसके बाद इनको जो है अलाउड होता था कि अपने फेथ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने मैनर में। हिंदू पॉपुलेशन जो है वो उनको
तीन तरीके में डिवाइड किया गया, तीन तरीके के इकोनॉमिक स्टैंडिंग में डिवाइड किया गया। जो सबसे अमीर हुआ करते थे उनसे 48 दिरहम सालाना लिया जाता था, जो मिडिल क्लास हिंदूज थे उनसे 24 दिरहम जो है सालाना लिया जाता था, और जो थोड़े गरीब हुआ करते थे उनसे 12 दिरहम लिया जाता था सालाना जजिया के तौर पर। टैक्स जो है ये जो है नेचर ऑफ टैक्स, हिंदू मुस्लिम रिलेशन, ये अभी भी हिस्टोरिकल एनालिसिस का एक पार्ट है, तो जितना हमें जानना था इतना काफ़ी है। In spite of extensive reforms carried out in the land revenue system by Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi failed to develop a progressive system of land revenue based on measurement of land and assessment of state demands in proportion to the actual produce. The agrarian reforms of Alauddin Khalji and the revolutionary change introduced in the fiscal policy by him and Muhammad bin Tughlaq fizzled out in the hands of their less imaginative and short-sighted successors. Firoz Tughlaq revived the Jagir system with a vengeance, the evil effects of which have already been discussed elsewhere in this study. तो क्या हो गया कि अलाउद्दीन खलजी या मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है रेवेन्यू सिस्टम को, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बेटर करने की कोशिश की। वैसे उनके अलावा और किसी सुल्तान ने जो है प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू डेवलप करने की कोशिश नहीं की। बट अलाउद्दीन खलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के जो लोग थे वो इनके रिफॉर्म को समझ नहीं पाए और ना ही ये सही से इम्प्लीमेंट हो पाया। अलाउद्दीन ने तो मतलब काइंड ऑफ ना स्ट्रिक्ट हैंड से अपने रहते रहते जो है इम्प्लीमेंट करवाया अपनी पॉलिसी, बट मोहम्मद बिन तुगलक के केस में तो उन्होंने बहुत रिवोल्ट फेस किया। इनके पॉलिसीज़ बहुत साइंटिफिक थे, जैसा हमने डिस्कस किया कि ये क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए अपने लोगों के बीच में, लेकिन इनके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे और उन्होंने जो है इन इम्प्लीमेंटेशन को जो है कंटिन्यू नहीं किया। जैसे फिरोज़ तुगलक, उन्होंने बिल्कुल लैंड असेसमेंट को तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया और सीधा उन्होंने क्या किया, जागीर सिस्टम जो कि अलाउद्दीन ने ख़त्म किया था वो वापस से शुरू कर दिया, जिसकी जो है जिसकी इल इफ़ेक्ट्स जो है वो बाद में भुगतनी पड़ी। द इक्ता सिस्टम। The Iqtidari was a unique type of land distribution system evolved during the Sultanate period, parallel of which is hard to find elsewhere in the history of India. The feudal estates of the Rajput era and the Jagirdari systems of the Mughal were quite distinct from it. It was a system of the allotment of vast tract of land called Iqtas among the military nobles. As we know, the conquest of the country by the Turks is a paradox of Indian history. A handful of Turkish nobles, assisted by thousands of the adventurers, apparently strangers to the land and its people, scored a military victory and set up their rulers. The number of victors was very small, rather insignificant as compared to the teeming millions who had been subjugated by them. The conquerors established their military hold over important towns and fortifications, albeit the vast landmass of the countryside with the bulk of Indian population was yet to be explored and conquered. In order to facilitate this task, the Sultan parcelled out their vague and undefined dominance into Iqtas and distributed these among their ambitious and enterprising nobles. The latter, called the Iqtidar or Muqtas, were instructed to carry an aggressive campaign against the powerful and refractory Hindu chief in their region and bring them under effective subjugation. The Iqta was a half-conquered and poorly administered territory over which the assignee was expected to establish a firm hold and introduce civil administration there as he thought fit or feasible. The Iqtidar recruited his own army, which was made self-supporting by utilizing the resources of his possession. He held the Iqta system as a rent-free grant in lieu of the state's service. He paid to the sovereign a specified amount of kharaj or offered peasants in cash or kind, including gold, silver, offered presents in cash kind including gold, silver, horses, elephants and other precious articles
every year and rendered military service to the state when needed. तो इक्तेदारी सिस्टम काफ़ी यूनिक है दिल्ली सल्तनत का। ये ना ही जागीरदारी सिस्टम ऑफ मुगल्स से सिमिलर है, ना ही राजपूत के फ्यूडल सिस्टम ऑफ स्टेट से सिमिलर है। इसमें क्या होता था, दरअसल जब मुस्लिम्स आए और उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया टर्किश नोबल्स ने, तो इंडिया में वो मुश्किल से 1000 लोग हुआ करते थे और उन्होंने पूरे के पूरे बड़े से पॉपुलेशन को कैप्चर कर दिया। तो इसको रूल करने के लिए एक्चुअली ना उन्होंने ये इक्ता सिस्टम बनाया। तो क्या हुआ कि सुल्तान के टास्क को थोड़ा इजी करने के लिए क्या किया कि पूरा का पूरा डोमिनेंट जहाँ भी इन्होंने कैप्चर किया उस पूरे डोमिनेंट को इन्होंने इक्ता में बांट दिया, अलग अलग इक्ता में। और फिर इंटरप्राइजिंग और एम्बिशियस नॉबल्स हुआ करते थे जो, उनको इक्तेदार बना दिया और इक्तेदार बना के उनको कहा कि आप एग्रेसिव पॉलिसी अपनाओ रिफ्रैक्टरी हिंदू चीफ्स को, जो हिंदू चीफ सब्जुगेट नहीं कर रहे, हमारा डोमिनेंट नहीं मान रहे, उनके अगेंस्ट जो है अग्रेसिव पॉलिसी लो। इक्ता क्या था, एक हाफ कॉन्कर्ड, आधा अधूरा कॉन्कर्ड पुअरली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी, जहाँ पर इक्तेदार को भेजा जाता था ताकि फर्म कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके, जिस भी तरीके से वो इस्टेब्लिश कर सके, बाय हुक और बाय क्रुक। इक्तेदार के पास अपना आर्मी होता था जो वो अपने ही टेरिटरी से बनाते थे और वो इक्ता रखते थे, रेंट फ्री इक्ता रखते थे और उसके बदले में लैंड मिल गया उनको रेंट फ्री, और इसके बदले में उनको क्या होना था, सुल्तान को उनको जो है खर्च देना पड़ता था और साथ साथ यानी तो गोल्ड, सिल्वर, हॉर्सेस, एलिफेंट ये सब प्रेजेंट कर सकते थे वो सुल्तान को। मेन काम उनका ये नहीं था, मेन काम उनका था कि सुल्तान को जब भी नीड पड़े तो वो उनको मिलिट्री सर्विस दें। इक्तेदार were not ordinary जागीरदार or the holders of rent-free assignments. They made personal contribution to the expansion and consolidation of Turkish rule in India in the 13th century. Most of them were self-made men who held the iktas as their personal estates, which were passed on to their descendants in the heritage. The emergence of hereditary iqtidar or feudal lords among the Turkish nobility laid the foundation of the rule very deep in the Indian soil. Balban failed to eradicate the hereditary iqtidars. Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq struck a serious blow to them by the abolition of Jagirdari system. They retained the iktas as administrative unit but changed the character of their holder. They resumed the hereditary iktas, which were entrusted to civil cum military servants who acted somewhat like district officers under the overall supervision of the regional and provincial governor. क्या कहा जा रहा है कि इक्तेदार नॉर्मल लोग नहीं थे, वो खुद बहुत ही एम्बिशियस लोग हुआ करते थे और उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी टर्किश रूल के एरिया को, टेरिटरीज को बढ़ाया है। वो सेल्फ मेड मैन हुआ करते थे और जब क्या होता था, इक्तेदारी हेरिडिटरी थी स्टार्टिंग में, तो जब वो मर जाएंगे तो उनके फैमिली को वो पास हो जाता था हेरिटेज की तरह। तो क्या होता था, ऐसे में क्या होता था कि वो पूरी मेहनत करते थे कि वो अपना जो एरिया है उसको जो है वो बढ़ा सकें। सपोज 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो है वो रूल कर रहे हैं तो वो उसको बढ़ाएंगे ताकि उनके डिसेंडेंट्स को और मिल सके एरिया, ऐसा कुछ हुआ करता था। बलबन जो है उसने हेरिडिटरी इक्तेदारी ख़त्म करने में वो जो है वो नाकाम रहे। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे और उन्होंने क्या कर दिया, इक्तेदारी सिस्टम को जो है एक सिविल सर्विस बना दिया, है ना। इसमें वो अपने पसंद के लोग डालते थे और जब तक वो सही काम करते थे तभी वो रह पाते थे, अगर गड़बड़ किया तो फिर उनको चेंज कर दिया जाता था। As the provincial government of the Sultanate was not well developed, some of the iqtidars under the direct control of imperial government were treated as provincial governors for all purpose and intents. Politically important or prosperous iqtas were given to princes of the royal blood as their personal estates. The evil of the hereditary iqtidar was revived by the successors of Alauddin Khilji and subsequently made universal by Firoz Tughlaq, who parcelled out the whole of his kingdom into iqtas or fiefs, which were distributed among the nobles as rent-free assignment. Theoretically, the iqtidars were under obligation to remit their surplus revenues to the state treasury and get their accounts checked by the royal auditors of the Diwan-e-Wizarat. Of course, the Sultan granted villages, agricultural lands or residential places as rent-free to the scholars, saints and other within an iqta which were excluded from jurisdiction of the iqtidar. The latter in turn granted free assignment to their relations
subordinate and brilliant lieutenants, thus strengthening and perpetuating feudal element in the administrative hierarchy of the sultanate. तो अलाउद्दीन खलजी के समय में तो ये एकदम एक सिविल ऑफिस सा बन के रह गया था, लेकिन अलाउद्दीन खलजी के बाद क्या हुआ कि जो उनके सक्सेसर्स आए, स्पेशली जब फिरोज शाह तुगलक आए, तो उन्होंने प्रॉपर हेरिडिटरी कर दिया इक्ता सिस्टम को. अब हेरिडिटरी हो गया इक्तेदारी सिस्टम, तो इसमें क्या हो गया कि लोग जो है जो रूल कर रहे हैं फिर उनके फैमिली ही रूल करेंगे, मतलब अगर वो इनएफिशिएंट भी हैं तो हटा नहीं सकते. कई बार तो इक्तेदार को जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर्स की तरह ट्रीट किया जाता था, और जो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस होते थे वहाँ पर जो है रॉयल ब्लड को ही दिया जाता था रूल करने. ऑफकोर्स जो इक्तेदार के अलावा जो फ्री लैंड होता था सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में, या फिर खालसा लैंड कह लें, तो उसमें से सुल्तान जो है वो गिफ्ट कर सकते थे, ग्रांट कर सकते थे स्कॉलर को, सेंट्स को, जैसे भी उनको सही लगे. इक्तेदारी सिस्टम जब हेरिडिटरी हो गया तो क्या हुआ कि फ्यूडल एलिमेंट इंटर कर गई, जिसने बाद में सल्तनत को जो है वो बर्बाद करके रख दिया. नाउ द जुडिशियरी. नेक्स्ट टॉपिक इज the judiciary. Sultan transplanted foreign law and legal institution in India which did not take deep roots during early medieval period. They implemented Shariat or the Islamic law of crime and punishment, the main source of which were the Quran, the Hadith and the Isma. The Holy Scripture contained the divine revelations. The Hadith comprised the tradition and percepts of prophet in matters of law and religion, while the Isma referred to the legal decisions taken by Muslim jurists or the authority and by the interpretation of the first two sources. As regards the Muslims, the application of the Islamic law to them treated as personal and indispensable, while Hindus were exempt from the application of religious part of the law. The latter were governed by their own tradition, custom and personal law, which was interpreted with the aid of learned pandits in their own panchayats, albeit a Hindu was subject to Islamic law when rival party in dispute happened to be Muslim or the state. तो जुडिशियरी क्या था, सुल्तान जो है उन्होंने फॉरेन लॉ और लीगल इंस्टीट्यूशंस को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. शरीयत या फिर इस्लामिक लॉ ऑफ क्राइम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, और मेन सोर्सेस क्या थे इस लॉ के, कुरान, हादिस और इज्मा. होली स्क्रिप्चर या कुरान जो है वो डिवाइन रेवलेशंस था, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को एक्चुअली हमने पढ़ा है, हमने इसमें तो नहीं पढ़ा है, बट एक्चुअली हीरा केव में जब प्रॉफिट मेडिटेशन किया करते थे तो माना जाता है कि उनको जिब्राइल के थ्रू जो है अल्लाह का डिवाइन रेवलेशंस मिला कि लाइफ कैसे जीना है. तो कुरान में वही बातें लिखी हुई है. अब आ गई हैदिस की बात. तो हैदिस जो है वो ट्रेडिशंस और परसेप्ट्स है प्रॉफिट का इन द मैटर ऑफ लॉ एंड रिलीजन. और इज्मा जो है ये क्या है, ये लीगल डिसीजंस है जो मुस्लिम जूरिस्ट्स ने लिया हुआ है हैदिथ या फिर कुरान को इंटरप्रेट करके. तो कोई मुस्लिम होता था तो उसको इन्हीं तीनों के बेसिस पर जज किया जाता था, लॉ सर्व होता था, जस्टिस सर्व होता था. कोई अगर हिंदू होते थे तो उनको हिंदू लॉ से, अपने ट्रेडिशन से, कस्टम से जज किया जाता था. लेकिन अगर हिंदू और मुस्लिम में कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो हिंदू भी जो है इस्लामिक लॉ को, हिंदू को भी जो है इस्लामिक लॉ के अंडर ही जज किया जाता था. जुडिशियल सिस्टम ऑफ सल्तनत वॉज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स. The ecclesiastical cases were separated from the civil and criminal suits. The Sultan, as the fountain of justice, usually aspired to earn reputation as the just monarch. His darbar constituted the highest civil and criminal court of justice, which took up original as well as appellate cases. The Sultan personally heard the disputes and administered justice with the assistance of muftis who interpreted the law for him. Below the Sultan there was the court of Qazi ul Quzat, or the chief justice of the empire, who appointed by the Sultan and held at his pleasure. The chief Qazi was in charge of main judicial organization of the state.
He appointed the provincial qazis, issued rules and regulations for the proper functioning of provincial and local courts, and exercised disciplinary control over the judicial services. Almost every important town has a qazi's court. Muhatsib, the censor of public morals, acted as police cum judge in the observance of the canon law by the Muslims. The provincial governors, iqtidars and other executive officers possess some judicial powers also. Even the faujdar and kotwals were authorized to settle petty criminal cases and inflict punishment on the defaulter. Ordinarily, the high officers did not discriminate between the exercise of executive and judicial function. The amils and other revenue officers decided revenue dispute. Village panchayat enjoyed the sanction of state to administer justice according to local tradition, custom, and the personal law of the populace. The penal code was severe. Physical torture, capital punishment constituted an essential part of it. Deterrent punishment were inflicted on the rebels and enemies of the state. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जुडिशियल सिस्टम की अगर देखा जाए तो हमने पहला पार्ट कर लिया. जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं था. जितने भी जो धार्मिक मुद्दे थे उनको जो है सिविल और क्रिमिनल मुद्दों से हटा के रखा गया था. सुल्तान जो है वो क्या थे, ही वॉज द फाइनल जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस काइंड ऑफ कह लो. और उनका रेप्यूटेशन बना हुआ था कि वो न्यायप्रिय हैं. उनके दरबार में वो जो है हाईएस्ट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके दरबार को कहा जाता था. और वो ओरिजिनल और एपेलेट केसेस को सुनते थे. ओरिजिनल यानी कि जो डायरेक्टली सुल्तान तक पहुंचा पहली ही बार में, और एपेलेट केसेस यानी कि जो लोअर अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा बट लोग जो है उस निर्णय से खुश नहीं हुए तो वो सुल्तान तक पहुंचे. सुल्तान जो है वो मुफ्तीज़ की मदद से जो है लॉ को समझते थे और जस्टिस भी दिया करते थे. सुल्तान के नीचे आते थे काजी उल कुज़ात जो कि चीफ जस्टिस हुआ करते थे एम्पायर के. और फिर सुल्तान जो है इनको अपॉइंट करते थे और ये जो तभी तक ऑफिस में रहते थे जब तक सुल्तान चाहते थे. चीफ काजी जो है वो मेन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं मतलब वो जो है इंचार्ज हुआ करते थे. और वो प्रोविंशियल काजीज़ को भी अपॉइंट करते थे और रूल और रेगुलेशंस भी उनको बताते थे कि प्रोविंसेस और लोकल कोर्ट में कैसे रूल्स चलने चाहिए, कैसे डिसिप्लिनरी कंट्रोल किया जा सकता है जुडिशियल सर्विसेज पर. मुहत्सिब जो है वो पब्लिक मोरल देखते थे, पब्लिक कंडक्ट देखते थे और वो पुलिस कम जज थे. अगर पब्लिक जो है वो प्रॉपर मोरल के हिसाब से नहीं रहते थे, स्पेशली मुस्लिम्स, तो वो उनको क्वेश्चन कर सकते थे. प्रोविंशियल गवर्नर, इक्तेदार और दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इवन फौजदार और कोतवाल, इनको भी ये परमिशन था कि ये छोटे छोटे जो है क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस को ये डील कर सकते थे. ऑर्डिनरीली जो हाई ऑफिसर्स थे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन में. अमील जो है वो रिवेन्यू रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करते थे. विलेज पंचायत को ये एक्स्ट्रा राइट मिला हुआ था कि वो जो नॉर्मल हिंदू पॉपुलेशन है उनके बिलीफ के हिसाब से, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से उनके जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं. अब आ जाते हैं नोबिलिटी में. The Sultanate was based on active support and cooperation of the nobility, referred to as Ahl-e Shamsheer or Ahl-e Saif, the men of the sword. They constituted the backbone of the Sultanate and formed a part and parcel of the sovereign power. The nobles commanded the armies and contributed towards the establishment and expansion of the state. They supplied ministers, provincial governors, iqtidars and other high executive officers from among them and exercised great influence on the state politics. Crown was not beyond the reach of a capable and ambitious noble. The nature, character and role of Turkish nobility had been discussed in details in chapter 5 of the study captioned Foundation of the Delhi Sultanate. Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq established their despotic rule by curtailing the powers of the nobility. The latter, however, reserted themselves during the reigns of the weak sultan and set up either as kingmakers or de facto rulers of the territories under their control. The character and role of the turbulent Afghan nobility who brought into existence in the effective tribal monarchy of the Lodhis had also been discussed in the sufficient detail in chapter 8 of this study. The disaffected and demoralized nobility ultimately brought about the fall of the Sultanate.
तो यहाँ पर क्या है ना कि नोबिलिटी के बारे में डिटेल में ऑलरेडी चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में डिस्कस्ड है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोज़ यू कैन सी दोज वीडियोज़, दोज आर ऑलरेडी मेड. तो इसके अलावा कुछ बातें की गई है कि नोबिलिटी के ग्रुप को जो है क्या कहा जाता था, अहल ए सैफ या फिर अहल ए शमशीर कहा जाता था. शमशीर मतलब स्वॉर्ड होता है, तो मैन ऑफ द स्वॉर्ड इसका मतलब ये होता है. और नोबिलिटी से ही जो है इक़्तिदार, प्रोविंशियल गवर्नर और मिनिस्टर्स बना करते थे. और जब रूलर जो है वो वीक हुआ करते थे तो नोबिलिटी जो है वो डिफैक्टो रूलर या फिर किंग मेकर बन जाती थी. कभी कभी जब रूलर बहुत ही डिस्पोटिक हुआ करते थे तो नोबिलिटी की पावर जो है एकदम कर्ब हो जाती थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक. डिसअफेक्टेड और डिमोरलाइज नोबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली सल्तनत के फॉल का कारण बन जाती थी, क्योंकि वो कोऑपरेट ही करना बंद कर देती थी. उलेमा. After the nobles, ulema, the Muslim intellectual and theologians, exercised great influence on the policies and functions of the state. Together with the nobility, they constituted the first two estates of the Muslim society, styled as the Umar. They interpreted the Islamic law and regarded themselves as the spiritual guardians of the Islamic state. They manned the judicial and ecclesiastical services and held an exclusive control over the mosque, religious establishment, and educational institutions. They enjoyed respect and prestige among the Muslim masses, and because of their popular appeal, demanded attention of the Sultan and nobility alike. The Sultan always felt obliged to treat them with due deference. Even the most powerful Sultan Alauddin Khalji paid them lip service and kept them in good humor by extending liberal state patronage. Muhammad bin Tughlaq had to pay heavily when he incurred the displeasure of ulema as a class. Under the weak or orthodox Sultan, ulema asserted the influence in state politics. Sadr-ul-Sadr, Qazi-ul-Quzat were usually their high priest. तो नोबेल्स के बाद उलेमा भी जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल कर लेते थे. ये क्या थे, ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और थियोलॉजियंस थे और ये भी स्टेट पॉलिसी को अच्छा खासा डिसाइड कर लेते थे. तो क्या होता था, ये जो है ये दे कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट टू स्टेट्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी. और फिर इनको जो है उमर भी कहा जाता था कलेक्टिवली. और फिर ये जो है ये क्या करते थे, ये इस्लामिक लॉ को इंटरप्रेट करते थे, स्पिरिचुअल गार्जियन हुआ करते थे. किसी जुडिशियल मैटर में अगर कोई कन्फ्यूजन होता था, मॉस्क के ऊपर कंट्रोल रखना है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट के मामले में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे. इनको रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज था मुस्लिम मासेस के अमोंग, सब इनकी इज्जत करते थे. और सुल्तान और नोबिलिटी भी जो है इनको जो है इनकी इज्जत किया करते थे. सुल्तान जो है, इवन सबसे पावरफुल सुल्तान ले लो अलाउद्दीन खिलजी, तो इवन इनको भी जो है इनके नोबिलिटी के ये उलेमास के साथ रिलेशंस ठीक ठाक रखने पड़े थे. मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अच्छे रिलेशंस नहीं रखे उलेमास के साथ एज अ क्लास, तो उनको फिर बाद में इनको जो है इसका बहुत ही मतलब भारी भरकम जो है चुकाना पड़ा. और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो वीक ऑर्थोडॉक्स सुल्तान हुआ करते थे उस पर तो उलेमा अच्छा खासा कंट्रोल कर लेते थे. सदर और काजी उल कुज़ात ये दो हाई पोस्ट हैं जो कि इन्हीं में से बनते थे, उलेमा में से ही बना करते थे. Then there is this topic, military organization. In today's video we will do this as the last topic, and public works and architectural monuments of the Sultan के completely different topic है, तो इसको हम लोग एक नए वीडियो में करेंगे. Okay, so let us start. The Sultanate was a military dictatorship. It owed its genesis to the military victory of the Turks over the Indian rulers in the 12th and 13th century, and its strength and stability depended primarily on the strong and efficient army. The military organization of the Turks was based on Turkish and Mongol models. The Sultan and all the grandees of the Sultanate were basically military men whose title denoted social status by way of military gradation. According to Genghis Khan's classification of his nobility, a Khan commanded 10,000 horse, a Malik commanded 1,000, and Amir commanded 100. During the Sultanate period, the socio-political gradation of the imperial officers, collectively known as Umar, remained the same, although the exact numerical strength of the soldiery commanded by them was seldom adhered to.
तो क्या कहा जा रहा है कि टर्किश स्टेट जो है वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टेट थी। इन्होंने जो है इंडियंस पर अपना पावर ही मिलिट्री बेसिस पर बनाया था और फिर ये जो है ये मंगोल या टर्किश मॉडल्स पर ही चलते थे। इनका जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था ये मंगोल या टर्किश मॉडल का था और सुल्तान से लेकर के ग्रैंडीज ऑफ द एम्पायर सब के सब मिलिट्री मैन हुआ करते थे। चंगेज़ खान के हिसाब से एक खान वो है जिसके पास 10,000 घोड़ों का कमांडो, हॉर्सेस का कमांडो। एक मलिक वो है जिसके पास 1,000 घोड़ों का कमांडो। एक अमीर का पोस्ट उसको मिलता था जो 100 घोड़ों को कमांड करता था। सल्तनत पीरियड के समय में सोशियो पॉलिटिकल ग्रेडेशन जो है इंपीरियल ऑफिसर्स का कलेक्टिवली उनको क्या कहा जाता था, उमर कहा जाता था, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। और ये जो है ये सेम रहती थी। ऑल्दो द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो कभी कभी एग्जैक्टली मेंटेन नहीं हुआ करता था कि मतलब अमीर के पास 100 ही घोड़े हों, ये एग्जैक्टली मेंटेन नहीं हुआ। बट ये जो है कि खान के पास ज़्यादा होंगे, मलिक के पास उससे कम, अमीर के पास उससे कम, ये मेंटेन हो गया था। Army of the Turks were primarily composed of the cavalry and infantry. Horsemen, however, occupied a place of pride in it. The war elephants were in great demand. They were put to a better use by the Turks against the Indian foes. Besides the actual use in the war, Turks also employed them as beasts of burden for the quick transport of armament and foot soldiers on the war front. The soldiers used bows and arrows, spears, swords, battle axes, daggers as offensive weapons of war, while their defensive weapons included shield, mails of steel, protective headgears. The horseman and his horse were both well protected. Animals were provided with trappings so as to cover the whole body and thick iron plate for the protection of the head. Turkish horsemen were excellent archers who could aim at the target with precision while moving at full speed on the horseback. The forts were a prized possession of the Turks. Infantry was a great use to them in laying siege to the forts. The catapults and other mechanical means were employed for hurling big stones and combustible material on the besiegers and for setting fire to the enemy camp. तो टर्किश आर्मी जो है वो उसमें ज़्यादातर जो है घुड़सवार हुआ करते थे और इन्फेंट्री भी थी। तो लेकिन घुड़सवार होना जो है एक प्राइड की बात थी इन्फेंट्री के कंपैरिजन में। ये लोग वॉर एलिफेंट्स का भी यूज़ करते थे और अपने इंडियन काउंटर पार्ट से एक एडवांटेजियस पोजीशन पे थे क्योंकि ये बेटर यूज़ कर पाते थे। ये जो है एलिफेंट्स को बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह भी यूज़ किया करते थे आर्मामेंट और लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए वॉर फ्रंट पर। ये बोज और एरोज यूज़ किया करते थे, स्पीयर, स्वॉर्ड्स ये सब जो है अटैक करने के लिए यूज़ करते थे और ख़ुद को बचाने के लिए शील्ड्स, हेड गियर्स ये सब यूज़ करते थे और ये हॉर्सेस को भी प्रोटेक्ट करते थे आयरन कवरिंग्स के साथ। टर्किश हॉर्समैन जो है वो एक्सीलेंट आर्चर से इतने अच्छे तीरंदाज हुआ करते थे ये लोग कि फुल स्पीड में हॉर्सेस पर चलते चलते भी एकदम सही निशाना होता था। उसके बाद द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुल्तान वॉज बेस्ड ऑन फ्यूडल प्रिंसिपल्स विच कैरीड ऑल द इनहेरेंट डिफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम विथ इट। तो आर्मी भी फ्यूडल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो फ्यूडल प्रिंसिपल पे जो भी कमियां हैं वो भी इस पर भी लागू हो रही है। अलाउद्दीन रेज्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी paid in cash by the state, but his successors failed to retain the standard and efficiency of royal troops as developed by him. तो अलाउद्दीन ने जो है एक स्ट्रॉन्ग वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी बनाने की कोशिश की, उसको कैश में भी पे किया, तो इससे क्या हो गया, फ्यूडल एलिमेंट का जो डिसएडवांटेज था वो ख़त्म हुआ। लेकिन अलाउद्दीन के जो सक्सेसर्स हैं वो ऐसा मेंटेन करने में जो है दे वर नॉट एबल टू मेंटेन दिस। Some failures of feudal organization of the army during the reign of Firoz Tughlaq have already been elaborated in this study. हमने फिरोज शाह तुगलक को जब पढ़ा तो हमने ऑलरेडी फ्यूडल आर्मी के जो प्रॉब्लम्स आए वो भी पढ़ा हुआ है। He substituted the system of cash payment by the grant of jagir or rent-free assignment to the soldiery and introduced
हेरिडिटरी एंड लाइफ लॉन्ग मिलिट्री सर्विस। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि कैश पेमेंट जो अलाउद्दीन करते थे वो हटा करके जागीर देना शुरू कर दिया। जागीर देना शुरू कर दिया, अब सोल्जर और पावरफुल बन गया। और फिर ऐसे में क्या हुआ कि साथ साथ इन्होंने क्या किया, लाइफ लॉन्ग मिलिट्री सर्विस इंट्रोड्यूस कर दिया और हेरिडिटरी कर दिया। मतलब मेरिट के बेस पे अपॉइंटमेंट नहीं होगा, हेरिडिटरी है, तो पेरेंट्स अगर हैं मिलिट्री में तो फिर बच्चे भी मिलिट्री में ही जाएंगे। और लाइफ लॉन्ग मिलिट्री सर्विस मतलब लाइफ लॉन्ग पैसा दो, अगर वो इनफिशिएंट भी है फिर भी जागीर उसके पास ही रहेगा। ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, टेकिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ द सोल्जर एंड एनुअल रिव्यू ऑफ द ट्रुप्स ऑफ द सुल्तान फेल इनटू डिसयूज। ये सारी अच्छी चीज़ें थी जो अलाउद्दीन खलजी ने शुरू किया था। क्या? दाग प्रथा, जिसमें घोड़ों पर दाग लगाया जाता था ताकि कोई घोड़े जो है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ घोड़े को बदल करके जो इन्फीरियर क्वालिटी का घोड़ा जो है वो नहीं डाल दे। डिस्क्रिप्टिव रोल उस जमाने का आईडी कार्ड हुआ करता था। सो सोल्जर के बारे में, उसके चेहरे के बारे में सब चीज़ लिखा होता था, हुलिया कैसा है नहीं है पता किया रहता था। और रिव्यू किया जाता था एनुअली, ट्रूप्स को देखा जाता था कि कौन है सही कौन नहीं है, जो नहीं प्रॉपरली फिट होता था उसको हटा दिया जाता था। ये सारी चीज़ें फिरोज़ तुगलक ने बंद करवा दी। तो फिरोज़ तुगलक जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डीके एंड डिटोरिएशन ऑफ द वंस माइटी एंड इनविजिबल आर्मी। तो आर्मी के डिटोरिएशन के लिए तो फिरोज शाह तुगलक ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल थे, लार्जली रिस्पॉन्सिबल वुड बी अ बेटर वर्ड। और फिर उसके बाद वी सी ऑल्सो व्हेन वी हैव रेड फिरोज शाह, तो हमने देखा कि बहुत सारे रिवोल्ट जो ये हो रहे होते हैं तो फिरोज शाह उसको जो है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दैट वाज अ एविडेंस और टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि आर्मी वीक हो गई थी। नेक्स्ट पार्ट इज पब्लिक वर्क्स आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सुल्तान। दिस वी विल डील विथ इन द अदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।